As we have in last video, we have discussed the three factors which increases the solubility of a gas. So Henry, the scientist, he has given a law known as Henry's law. Now what is that Henry's law? At a particular temperature, mass of gas dissolved is directly proportional to pressure of gas. जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ही ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी. आप लोगों को भी पता है एज गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर. सो द लॉ वॉज मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, द कांस्टेंट कम्स m इज इक्वल टू k p. K is a constant, proportionality constant. Now Henry's law can also be defined in terms of mole fraction as well. X is directly proportional to p. Proportionality का साइन हटा, k dash x is equal to k dash p. Now if we'll rearrange this equation, 1 upon k dash into x is equal to p. Is it okay? Now 1 upon k dash, we have substituted 1 upon k dash is equal to kh, x is equal to p. Now here kh is Henry's constant. Now we'll reframe this equation, x is equal to 1 upon kh dot p into p. According to this equation, we can say that as the value of kh increases, solubility decreases because kh is inversely proportional to mole fraction. और kh बढ़ेगा कैसे? Increases with the temperature. So this is Henry's law. kh बढ़ेगा, solubility कम होगी, kh increases with the temperature. Okay, so the now next topic is, now what are the applications of Henry's law? Very important topic from board point of view. Very important question. First application is to increase the solubility of CO2 in carbonated drinks. High pressure is applied. This is one of the important application of Henry's law. Second application, scuba divers. Important. क्या होता है कि जैसे हम स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज के अंदर बेंड्स लगा देता है. बेंड्स मतलब कुछ बेंड्स मीन्स कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, स्पेसेस रह जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे या उस तरह से आपको प्रॉब्लम होने लगेगा. सो टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और वो होता किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से इन द ब्लड. सो जो टैंक यूज़ किए जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, उसके अंदर एक प्रॉपर मेजरमेंट रखा जाता है एयर का, इज फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम. इसके अंदर ये प्रपोर्शन ही रहना चाहिए जिसकी वजह से ही ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकता है. 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन. दिस क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम, that what is the application of Henry's law in scuba diving. So the tanks that is used by scuba divers is filled with the air diluted with helium, जिसके अंदर यही proportion होगा. that is very good. okay, अब क्या होता है? थर्ड एप्लीकेशन इज, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है. तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन कम है. ऑक्सीजन कम होने की वजह से एक डिसीज़ हो जाता है. द नेम इज़ एनॉक्सिया. व्हाट इज़ दैट एनॉक्सिया? जहाँ पर इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, in which the person is unable to think clearly. So these are the three applications of Henry's law. So today we have studied one type of solution, that is gases in liquid, that is aerated drunks. First we have studied the solubility on which factors on which solubility of gas depends. Then we have studied the Henry's law. And then the three applications of Henry's law. Very important question. The question will come from this part, applications of Henry's law. The second category is solids in liquids. Most common example, sugar plus water, salt plus water. What are the factors on which solubility depends? Types of solid. As we know the rule of chemistry, like dissolves like. पोलर को पकड़ेगा, मतलब पोलर वाला जो सॉल्वेंट रहेगा वो वाटर के साथ सॉल्युबल रहेगा. नॉन पोलर वाला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व रहेगा. तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, टाइप ऑफ सॉलिड.
The second factor is pressure, no effect. No effect. The third one is temperature. Important factor, please listen. There are two types of processes, endothermic, exothermic. एंडोथर्मिक के केस में जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. जैसे हमने गैसेस एंड लिक्विड में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक के केस में ली शैटलियर क्या करता था, ली शैटलियर के अकॉर्डिंग रिएक्शन ऑपोजिट रिस्पॉन्ड करती थी. तो एंडोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में सॉल्युबिलिटी कम होगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. Okay, now we'll explain this factor, temperature factor, that endothermic के केस में तो solubility बढ़ रही है, लेकिन exothermic के केस में solubility कम हो रही है. On the basis of a graph, in the form of a graph, I'll explain this. Okay, first example is AgNO3, solubility increases with the temperature. Ki, solubility increases with temperature. NaCl, solubility increases with temperature. लेकिन अगर मैं लिथियम सल्फेट की बात करती हूँ, मैंने ग्राफ को नीचे की तरफ शो करा है, एक्सोथर्मिक के केस में जहां पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ने पर. ओके, तो ये तो हुए दो तरह के एग्जाम्पल्स. तीसरे एग्जाम्पल की बात करूंगी, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. पढ़े हुए हैं सबने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या रहता है, Na2CO3.10H2O. मैं यहाँ पर एक सॉल्ट की बात करूंगी, सोडियम सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है. तो इस केस में क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, दिस क्वेश्चन विल कम. हाइड्रेटेड सॉल्ट के केस में क्या रहेगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट के केस में ये रहेगा, एज सून एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ क्योंकि पानी प्रेजेंट है, राइट. सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी मतलब तब तक वो एंडोथर्मिक रहा, लेकिन जैसे ही ये हट गया तो सिस्टम एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, पहले बढ़ेगा, एंडोथर्मिक रहेगा, पहले एंडो रहेगा, लेकिन बाद में क्या रह गया, वो एक्सो. और ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ये चेंज हो रहा है, पहले एंडो फिर एक्सो, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, this particular point is known as transition temperature.